Students, welcome to the class, and this lecture is for class 11th. I am Dr. Akash, and today we discuss our fifth chapter from class 11th, the states of matter, in one lecture. Okay, so let's start. First of all, in the part 1, I have already discussed the force of attraction, that is dipole, 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 induced dipole, ion induced dipole, hydrogen bonding and London dispersion forces. So, in today's lecture, we discuss the basic numerical part, the numerical based part like derivations and all the relations. So, start with the very first, Boyle's law. Boyle's law. Okay, according to Boyle's law, P is inversely proportional to V at constant T, at constant temperature. Now, according to Boyle's law, pressure applied by a gas is inversely proportional to its volume at constant temperature. So, we can write that P is equals to K into 1 upon V, or PV is equals to K. Since K is constant, so we can write P1 V1 is equals to K1 and P2 V2 is equals to K2. If this is equation 1 and this is equation 2, so from equation 1 and 2, we get P1 V1 is equals to P2 V2. This is our Boyle's law. And the graph of Boyle's law is like this: P with respect to 1 upon V, and the graph is like this. And this is known as isothermal, because the temperature is constant. Here iso means same or fixed or constant, and thermal is for temperature effect, heating effect. Then isothermal. इस ग्राफ का नाम क्या हो गया बेटा? Isothermal. Okay. Now next one is Charles' law. Next one is Charles' law. Charles' law. So, according to Charles' law, V is directly proportional to T at constant pressure. It means at constant pressure, volume applied by a gas or volume of a gas is directly proportional to the temperature. At constant pressure, the volume of a gas is directly proportional to its temperature. So, as we increase the temperature, the volume also increases. So, we can write V is equals to KT, or V upon T is equals to K constant. So, V1 upon T1 is equals to K1 and V2 upon T2 is equals to K2. If this is equation 1 and this is equation 2, so from 1 and 2, from equation 1 and 2, we get V1 upon T1 is equals to V2 upon T2. This is what? This is Charles' law.
at constant pressure. So the graph is like this. This is V and this is T and this is the graph. So we can write that the graph is what? Isobaric. Isobaric. Same as in the case of temperature, the term was isothermal, and here the term is isobaric when pressure is constant. Now next one is Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law. Okay, according to Gay-Lussac law, P is directly proportional to T. Pressure is directly proportional to temperature when volume is constant. At constant volume V. So we can write P is equals to KT and P upon T is equals to K. From this we can write P1 upon T1 is equals to K1 and P2 upon T2 is equals to K2. If this is equation 1 and this is equation 2, then from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, we get P1 upon T1 is equals to P2 upon T2. P1 upon T1 is equals to P2 upon T2 at constant volume. This is P and this is T and this is the graph. So the term constant volume can be written as isochoric condition. Isochoric condition. So we have three types of condition, that is isothermal, isobaric and isochoric. हमारे पास तीन टाइप के कंडीशन आ गए, पहला आइसोथर्मल, दूसरा आइसोकोरिक एंड तीसरा आइसोकोरिक. ओके, इन केस ऑफ आइसोथर्मल टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रेशर इज कांस्टेंट एंड इन केस ऑफ आइसोकोरिक वॉल्यूम इज कांस्टेंट. सो आप लिखते रहेंगे साथ साथ में वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आपको एकदम एक रिवीजन नोट्स बनाना है स्टेट्स ऑफ मैटर का, इसलिए मैं आपको ये वाला लेक्चर दे रहा हूं जिससे आप एकदम 1 घंटे में पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर इजीली रिवाइज कर जाएं. ठीक है, तो ये क्या हो गया? गै-लुस्सैक लॉ. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एवोगैड्रो's लॉ. Avogadro's law. So according to Avogadro's law, volume of a gas is directly proportional to number of mole of gas. Volume of gas is directly proportional to number of mole of gas. So we can write V directly proportional to N, or V is equals to Kn. V1 upon N1 is equals to K1, this is equation 1, and V2 upon N2 is equals to K2, this is equation 2. ऐसा ही हम सब में कर रहे हैं, यहां भी ऐसे ही करेंगे. तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get V1 upon N1 is equals to V2 upon N2, and this is what? This is Avogadro's law. So now we have 4 different law. First is Boyle's law, second is Charles' law, third is Gay-Lussac law, and the last one is Avogadro's law. Now नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा, देखिए, combined gas equation. Combined gas
इक्वेशन। ओके, कंबाइंड गैस से क्या लगता है, बहुत सारे लॉज को आपस में मिला दिया गया होगा। ठीक है, मिला देते हैं। किसको उसको मिलाना है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ओके, इन सबको हम आपस में मिला देते हैं। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या था? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। चार्ल्स लॉ क्या था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एवोगैड्रोस लॉ क्या था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ओके, देखते हैं सबको लिख के क्या आता है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, अब क्या हो गया? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। देखिए अब क्या है कि अगर इस V को इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस V को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें P से, तो क्या हो जाएगा? PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। If this is equation 1, this is equation 2, and this is equation 3. So from 1, 2 and 3 we get that PV directly proportional to NT. PV is directly proportional to NT. Then this PV directly proportional to NT can be combined gas equation. ठीक है, इसको हम कंबाइंड गैस रिलेशनशिप बोल सकते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे? इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? PV इज इक्वल्स टू NRT। ठीक है, PV इज इक्वल्स टू NRT। ठीक है, इस PV इज इक्वल्स टू NRT को हमने क्या बोला? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है जी, अब देखिए थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। हमारे पास क्या था? P1 V1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था। फिर क्या था? V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था। फिर क्या था? P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था। ठीक है, ये तीन लॉ आपको याद होंगे। ये बॉयल्स लॉ था, ये चार्ल्स लॉ था, और ये गैलुसेक्स लॉ था। बॉयल्स लॉ था, चार्ल्स लॉ था, और गैलुसेक लॉ था। ठीक है, फ्रॉम दीज थ्री, दिस इज 1, 2 and 3। अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब हम नई बात कर रहे हैं यहाँ पे। फ्रॉम दीज थ्री 1, 2 and 3 वी हैव P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। क्योंकि ये सब क्या है? एक ही कांस्टेंट के इक्वल है, एक ही कांस्टेंट के इक्वल है सारे। तो क्या हो जाएगा? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन, this is combined gas equation, and this is what? This is ideal gas equation. There are two different equations, combined gas equation and ideal gas equation. And what is the difference between these two? Ideal gas equation have number of mole as well as the universal gas constant R. R is what? R is universal gas constant. Universal gas constant, and the value of R is what? 8.314 joule per Kelvin per mole, and another value of R is what? 0.0821 atm liter per Kelvin per mole। ठीक है, R की दो वैल्यूज है हमारे पास, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल and R is equals to 0.0821 atm liter per Kelvin per mole, and N is equals to what? N is equals to number of mole। अभी आगे इस पे बात करेंगे हम। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन पे अभी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई, क्या? कंबाइंड गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन।
अब हमारे पास टोटल कितनी इक्वेशंस हैं? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गैलुसेक लॉ, कंबाइंड गैस लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इतनी सारी इक्वेशंस अभी तक हमने यहां पर सीखी हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज अब हम आइडियल गैस इक्वेशन को लेकर आगे बात करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन के लिए बात करते हैं। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन में क्या था? PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, सो वी कैन राइट दैट N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल which is equals to given weight upon molecular weight, given weight upon molecular weight, and this given weight and molecular weight can be represented at W upon M. This W is what? This is given weight and this M is what? This is molecular weight. ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। जो n की वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 से उठा करके इक्वेशन 1 में डालेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा ये PV इज इक्वल्स टू W अपॉन MRT। क्या? PV इज इक्वल्स टू W अपॉन MRT। नाउ वी कैन राइट PM इज इक्वल्स टू W अपॉन VRT। फ्रॉम दिस वी कैन राइट PM इज इक्वल्स टू W अपॉन VRT। इस M को यहां ले गए, V को नीचे लेके आए। ठीक है, तो क्या बन गया? देखो अब ये W अपॉन V क्या है? दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? D से। इफ D इज इक्वल्स टू डेंसिटी देन PM इज इक्वल्स टू DRT। क्यों भाई? क्योंकि W अपॉन V इज इक्वल्स टू D है। So this is the relation between density and molecular mass. Relation between density and molecular mass. Okay, this is the relation between density and molecular mass. Okay. So this is the ideal gas equation and relation between density and molecular mass. Now we have a new equation that is Dalton's law of partial pressure। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्या बोला गया कि डाल्टन ने एक लॉ दिया किसका? पार्शियल प्रेशर का। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इफ अ सिलेंडर और अ कंटेनर, अ गैसियस कंटेनर हैव n number of molecules of gas, then the total pressure applied by the gaseous system, the gaseous mixture, is equals to the sum of individual pressure of each gas। ठीक है, क्या बोला गया? total pressure is equals to sum of all the इंडिविजुअल प्रेशर्स। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब क्या है? ये एक सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं।
ठीक है। तो जो इसका पूरे का प्रेशर होगा वो इन सब के प्रेशर को ऐड करके होगा। देखिए जैसे क्या हो गया, इसका प्रेशर P1 हो गया, इसका P2, इसका P3, इसका P4, इसका P5, इसका P6, P7, P8, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, Pn तक जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि इसका जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज P total will be equals to P1 plus P2 plus P3 up to Pn। ठीक है, ये क्या बोला, ये किसने बोला, ये बोला डाल्टन ने। ठीक है, अब देखो हमें आइडियल गैस इक्वेशन से क्या पता है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट PV is equals to nRT। ओके, PV is equals to nRT, then P is equals to nRT upon V। ठीक है, ओके, so the number of moles of individual gases are the number of mole of individual gases are N1, N2, N3, ऐसे कहां तक जाएगा, Nn तक। ठीक है, सो वी कैन राइट, इसको मैं क्लीन करता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएंगे। वी कैन राइट दैट P is equals to P1 plus P2 plus P3 plus Pn। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, P total is equals to N1 RT upon V plus N2 RT upon V plus N3 RT upon V प्लस क्या हो गया, Nn RT upon V। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहां V1, V2, V3, V4 क्यों नहीं लिख रहा हूं, इसलिए क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और गैस का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, उतने ही वॉल्यूम का होगा जितना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा। क्यों, क्योंकि इट ऑलवेज फ्री टू मूव, वो क्या है, हमेशा मूवमेंट करने के लिए फ्री है, इसलिए गैस के एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो भी पूरे कमरे के बराबर होगा, क्योंकि वो पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो क्या बोला गया, RT अपॉन V इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस Nn। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया P टोटल। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करें कि अब देखिए ये क्या है, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस ऐसे करते करते कहां तक पहुंच गया, Nn तक। तो इस P टोटल के लिए क्या वैल्यू होगी, nRT अपॉन V, ये वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल्स टू RT अपॉन V N1 प्लस N2 प्लस N3, फिर क्या आ गया, Nn तक। ये RT अपॉन V कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 Nn डिवाइडेड बाई N टोटल, ये क्या हो गया, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी है, क्या कि अगर एक नंबर ऑफ मोल N1 अपॉन N टोटल कर दें हम, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां पर पूरे सिस्टम P टोटल को P1 से अगर कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, P टोटल को अगर P1 से कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करना है, P1 से,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल। P1 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल, या मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, P1 अपॉन P टोटल। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन हमने अभी यहां निकाला था वो किसके लिए निकाला था, P टोटल के लिए। अगर P1 के लिए एक्सप्रेशन हम यहां निकालते हैं P1 के लिए तो क्या आता, N RT अपॉन V, और यहां N1 हो जाता। ठीक है, N RT अपॉन V, और यहां क्या हो जाता, N1 हो जाता। तो अगर P1 अपॉन P टोटल हम यहां एक बार कर दें, देखो N1 यहां लिख देते हैं N1 RT अपॉन V अपॉन, ठीक है। अब यहां कितना हो जाएगा, P टोटल कितना है, P टोटल है N1 से लेके N तक, मतलब N टोटल इंटू RT अपॉन V। तो ये RT कट गया, V कट गया, क्या आया, N1 अपॉन N टोटल। ये N1 अपॉन N टोटल हमने यहां क्या लिया हुआ है, हमने यहां लिया हुआ है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सो दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। P1 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल। ठीक है, और यू कैन से मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P टोटल। ठीक है, ऐसा हम पढ़ते ही हैं, और ये डाल्टन का लॉ है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल प्रेशर। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड द टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक इक्वेशन होता है बेटा, वो आपको बस याद रखना है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन, इससे आगे चल के हमारे कुछ डेरिवेशन सॉल्व होंगे। वो क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू 1/3 MnC स्क्वायर। ठीक है, PV इज इक्वल्स टू 1/C MnC स्क्वायर। P इज इक्वल्स टू प्रेशर, V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, M is equals to mass of gas molecule, N is equals to number of mole। ठीक है, और C square is equals to root mean velocity। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखेंगे, आगे अभी इसका काम आएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी को लिए हम बात करनी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को लेके हमें बात करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एवरेज, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज। देखिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी अपॉन द नंबर ऑफ मोल। सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर है। ठीक है, और हमारे पास एक रिलेशन और है, क्या है, PV इज इक्वल्स टू 1/3 MnC स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे हम बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल्स टू
काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 3 अप टू nth टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, एक एजम्पशन यहां करेंगे, इफ मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज सेम, ये हमने एक एजम्पशन करके चल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस हाफ एम वी थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nn, और यहां पे कहां तक चला जाएगा, हाफ एम वी एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो बात हुई अभी, ये तो किसके लिए हुई, ये बात हुई बस किसके लिए, जो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी उसके लिए, लेकिन यहां हम क्या बात कर रहे हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nn, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके n1 n2 n3 टाइप के नंबर ऑफ मोल भी प्रेजेंट हैं। तो इस इक्वेशन को मॉडिफाइड तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, हाफ एम n1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम n2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ एम n3 v3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस हाफ एम nn vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nn, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इस एक्चुअल इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कुछ चीजें कॉमन लेंगे। तो ऊपर वाले सारे टर्म्स को मैं क्लीन कर देता हूं। देखिए ये हमारे पास बचा हुआ है, ये भी क्लीन हो गया यार, हाफ एम n2 v2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये चीजें हमारे पास क्या है, अभी तक बची हुई है, ठीक है। अब देखिए तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर अप टू nn vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 और इसको कहां तक जोड़ दिया, nn तक, ठीक है। हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर, और ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा nn vn का स्क्वायर तक, nn vn स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, और ये कहां तक है, nn तक, ठीक है। अब देखिए इस वेलोसिटी को यहां पर, इस वेलोसिटी को यहां पर बोला जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग अ गैसियस मिक्सचर। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो कि एक गैसियस मिक्सचर कंटेन करता है, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, जिसके कारण उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, तो उसको क्या बोला जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। और इसको हम डिनोट करेंगे सी स्क्वायर से, ठीक है। तो एक बात यहां क्लियर हो गई। अब देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं अब आगे, कि c इज इक्वल्स टू, सिंस दिस इज सी स्क्वायर, ठीक है, अगर ये c स्क्वायर की वैल्यू है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 nn vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, और कहां तक पहुंच गया, nn तक, ठीक है। ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए
हमारे पास एक इक्वेशन क्या था, काइनेटिक गैस इक्वेशन, दैट इज 1/3 mnc²। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हम दोबारा से यहां चलेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन पर। क्या है, PV इज इक्वल्स टू 1/3 m इंटू nc²। ये क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, अब देखो क्या आ गया, सिंस Mn इज इक्वल्स टू m नंबर ऑफ मोल इनटू मास ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास, और टोटल मास हमने क्या ले लिया, कैपिटल M। तो क्या आ गया, PV इज इक्वल्स टू कैपिटल mc²/3। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, c² इज इक्वल्स टू PV/m, सॉरी 3PV/m। ठीक है, 3PV/m। ठीक है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। ठीक है, इफ n इज इक्वल्स टू 1 देन PV इज इक्वल्स टू RT हो जाएगा। ठीक है, इसको ले लो आप, क्या पहले तो आप इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो आप इक्वेशन 2, इसको ले लो आप इक्वेशन 3। ठीक है, और फिर क्या करो वैल्यू पुट, वैल्यू को पुट करेंगे। यहां तक आप नोट कर लीजिए, मैं इसको क्लीन कर देता हूं और फिर हम यहां वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्या आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, c² इज इक्वल्स टू 3RT/m, 3RT/m, और वी कैन राइट c इज इक्वल्स टू √3RT/m। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहीं तक मैं आपको पहुंचाना चाह रहा था और आप अच्छे से पहुंच भी गए हैं यहां तक। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए ये आ गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास एक गैस थी जिसका नाम था आइडियल गैस। अच्छा, वो क्या थी, वो ये थी कि जो इस इक्वेशन को पूरी तरह से फॉलो करती हो, PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन है और जो भी गैस ऐसी होगी जो इसको फॉलो करेगी वो आइडियल गैस हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी आइडियल गैस पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो आइडियल गैस। ठीक है, प्रैक्टिकली, ठीक है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो फिर गैस कौन सी पॉसिबल है भाई, गैस पॉसिबल है रियल गैस। ठीक है, अच्छा अब दो चीजें आ गई, आइडियल भी आ गया, रियल भी आ गया। तो रियल आइडियल में डिफरेंस क्या है, रियल और आइडियल में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस है जेड का, और जेड इज व्हाट, जेड इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, जेड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। ठीक है, अच्छा फॉर आइडियल गैस जेड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एंड फॉर रियल गैस जेड क्या होगा, 1 से छोटा होगा, लेस देन 1। ठीक है, 1 नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा नीट और जेई वाले। ठीक है, जेड आइडियल गैस के लिए 1 होता है, रियल गैस के लिए उससे अलग होता है। अब देखिए थोड़ा सा इधर आइए, तो क्या हो जाएगा, फॉर रियल गैस PV इज इक्वल्स टू ZRT, सॉरी ZnRT, ZnRT। ठीक है, अच्छा ये सारी बातें किसने बताई कि ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, ये सब बताया वंडर वॉल ने, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वंडर वॉल। इनका नाम आप पहले भी सुन चुके हैं इसी चैप्टर में। तो वंडर वॉल ने बताया कि ऐसा नहीं होता है, कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है, कुछ रियल गैसेस होती हैं जो कि आइडियल गैस को फॉलो नहीं करती हैं, और उनका कारण होता है Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एनसीईआरटी में एक ऐसा ग्राफ दिया है, अभी जाके देखिएगा, ऐसा, ठीक है। उसका मतलब क्या है, ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या है, दिस इज आइडियल कैरेक्टर, दिस इज आइडियल कैरेक्टर। और गैसेस आइडियल कैरेक्टर से कितना डिफ्लेक्ट हो रही हैं, अगर ये एक आइडियल कैरेक्टर है तो कोई गैस आइडियल कैरेक्टर से कितना डिफ्लेक्ट हो रही है। सपोज ये ग्राफ बन गया ऐसे, ठीक है, कुछ बिहेवियर ऊपर भी दिख रहा है, कुछ बिहेवियर नीचे भी दिख रहा है, तो क्या हो गया, ये क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के कारण दिख रहा है। फिर क्या हुआ, वंडर वॉल ने अपना एक इक्वेशन दिया जिसको वंडर वॉल गैस इक्वेशन कहा गया, और वो इक्वेशन क्या था, P प्लस A n स्क्वायर अपॉन V, P प्लस A n स्क्वायर अपॉन V इंटू V माइनस एन बी, V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू nRT। ये इक्वेशन किसने दिया, वंडर वॉल ने, तो इसको क्या बोला गया, वंडर वॉल इक्वेशन, वंडर वॉल इक्वेशन, ठीक है। कहां से आया ये आपको नहीं जानना है, आपको बस इक्वेशन जाननी है कि वंडर वॉल इक्वेशन होता क्या है। तो वंडर वॉल इक्वेशन इज P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V, सॉरी V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। ये क्या हो गया, वंडर वॉल इक्वेशन। अब इसमें A क्या है और B क्या है, ठीक है, इसमें A और B ये सब क्या क्या है, ये कैसे पता लगेगा। अब इसमें ये क्या है, A भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट A एंड B, ठीक है, A भी कांस्टेंट है और B भी कांस्टेंट है, ठीक है। और दोनों चीजें जो हैं, ठीक है, क्या है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस रखती हैं, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस रखती हैं। A इज फॉर द फोर्स एंड B इज फॉर द साइज, ठीक है। A क्या है, फोर्स के लिए है, जो गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रही है, किस पे, वॉल ऑफ द कंटेनर पे, और किस पे, दूसरे गैस मॉलिक्यूल पे, ठीक है। अगर मैं एक गैस मॉलिक्यूल हूं और पूरे कमरे में उड़ता हुआ चलूं तो कभी दीवार से टकराऊंगा, कभी अगर मेरे ऐसा कोई और होगा कमरे में तो उससे टकराऊंगा। तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल फोर्स लगा रही है, कहां लगा रही है, वॉल ऑफ कंटेनर पे। अगर ये वॉल ऑफ कंटेनर है तो इस पे लगा रही है, और अगर ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल है तो इस पे भी लगा रही है। और क्या है, साइज, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो भी फोर्स है, कोलिजन फोर्स, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इसके साइज पे, ठीक। इसका साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा फोर्स रहेगा, क्योंकि सरफेस एरिया उतना बड़ा हो जाएगा गैस मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे। साथ साथ एक छोटी सी चीज और है ध्यान रखने वाली, कि A और B की क्या यूनिट है, ठीक है। तो B की जो यूनिट है वो है लीटर पर मोल, ठीक है, लीटर पर मोल। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, ठीक है, लीटर पर मोल। और A की जो यूनिट है वो क्या है, ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो एग्जाम में ज्यादातर आपसे यूनिट्स पूछे जाएंगे कि ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर और लीटर पर मोल, ये B का यूनिट हो गया, ये A का यूनिट हो गया। इस चीज को हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ओके, नाउ थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, KMTG, ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। अब देखिए इस थ्योरी में क्या क्या पोस्टुलेट है, बस वो समझना है, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 1 क्या है, जितने भी गैसेस हैं,
ठीक है, सब क्या है, रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। इस रैंडम मोशन के कारण इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है, ठीक है। और रैंडम मोशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन लेस मोशन, ठीक है। और क्या है, ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन द वेलोसिटी इज वेरी हाई, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² फॉर्मूला होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट ये हो गया कि ऑल द गैसेस मॉलिक्यूल्स हैव डायरेक्शन लेस रैंडम मोशन विथ हाई वेलोसिटी सो दैट देयर काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज हाई है, ठीक है। उनका काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात करेंगे हम। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग द रैंडम मोशन, ड्यूरिंग द रैंडम मोशन गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड द वॉल ऑफ कंटेनर। उनमें क्या होता है, कोलिजन होता है। कोलिजन कैसे होता है, ईच अदर मतलब ईच अदर गैस, एक दूसरे गैस के साथ भी होता है, और क्या होता है, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इससे क्या चीज जनरेट हुई, ये क्यों लाया गया इस थ्योरी में, ये पॉइंट क्यों लाया गया, इसलिए क्योंकि दिस कोलिजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर इफेक्ट। गैस के पास प्रेशर इफेक्ट होता है, साइकिल के ट्यूब में हवा भरते हैं, बलून फुलाते हैं, फुटबॉल में हवा भरते हैं, ये सब क्या है, प्रेशर इफेक्ट है। और ये सब प्रेशर इफेक्ट कहां से आया, इस कोलिजन से। और ये कोलिजन किसके बीच में होता है, गैस का दूसरे गैस मॉलिक्यूल के बीच में और गैस का वॉल ऑफ द कंटेनर के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या हुआ कि सपोज आज फुटबॉल में हवा भर दी तो शाम तक निकल जानी चाहिए, क्योंकि कोलिजन हो रहा है तो कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। लेकिन क्या बोला गया, जो कोलिजन है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मतलब नो लॉस, ध्यान से याद रखिएगा, नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, नो लॉस ऑफ एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल विथ अदर गैस मॉलिक्यूल एज वेल एज द वॉल ऑफ कंटेनर। जब एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकराएगी या फिर वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगी, तब भी उनके बीच में किसी तरह के एनर्जी या मोमेंटम का कोई लॉस नहीं होगा, मतलब द कोलिजन इज व्हाट, परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। तो ये सब क्या थे, ये सब कुछ पोस्टुलेट थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के। और अभी तक मैंने आपको जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें हैं इस चैप्टर में, वो सारी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और आपका पूरा चैप्टर यहाँ तक कवर हो गया। अब इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, और जो नहीं आता है वो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। ओके गाइज, हैव अ गुड लक एंड गुड डे एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।